Good morning, students. Today we are to do elements of art. Before I proceed further, let us recapitulate what we have done so far. We are doing elements of art. In last lecture, we had done point and line. Today we will continue with other elements. Don't you forget, elements are point, line, form and shape, space, color and texture. Form and shape today we will do. Now what is form? Form is first organic revolution of matter. This is the full form of the form. Form and shape. First organic revolution of matter, just right now only we have studied it. Form is a shape of volume or mass. A triangle is a shape and a cone is a form because it has volume as well as mass. Similarly, a circle is a shape and sphere is a form. Form is a structure, not a surface. The basic difference though between shape and form is that the form is three-dimensional while shape is plain two-dimensional. A 2D shape has the basic dimensions of length and width, while a 3D form has a third dimension on top of the length and the width, the height and the depth. Now we will study what is basically form and shape through these two images. You can see shape, it is written on a black one square box. It is shape. Shape is two-dimensional. But form, you can see it has height, depth and width. Everything. It has mass and volume too, right? And on the side one picture you can see different shapes as well as forms. Forms are usually three-dimensional, rather I should say forms are always three-dimensional and shapes are two-dimensional. You can see triangle and cone, square and cube, circle and sphere. Form can be symmetrical, one half is same as the other half or both are identical to each other. For example, sphere, cube, equilateral triangle, square, rectangle, cone, etc. As well as asymmetrical, organic, where one half is not equal to the other half. For example, all the polygons and many natural forms, as is the case in line. All forms have different effects on different places, shapes. Rectangular form gives an illusion of strength, unity and stability, whereas triangular form shows development in its pinnacle. Oval shape has grace and charm, and at the same time circular shape has the sense of fullness, motion, equality and completeness. Now let's study what is form. Actually, form can be of two types. It can be symmetrical also and asymmetrical also. As symmetrical forms are usually, what is the difference between the two, symmetrical and asymmetrical? Symmetrical are those forms जिनका एक हाफ दूसरे हाफ के इक्वल होता है या जिनके दोनों पार्ट एक दूसरे के आइडेंटिकल होते हैं. ठीक है, उसकी एग्जाम्पल्स हमें मिली हैं, वो हैं स्फेयर्स, क्यूब, इक्विलेटरल ट्राइंगल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, कोन एक्सेट्रा. अब फॉर्म्स जो हैं वो असिमेट्रिकल ऑर्गेनिक भी हो सकती हैं, जिसमें ज़रूरी नहीं है कि एक हाफ जो है उसका दूसरे हाफ के इक्वल होगा. उसकी एग्जाम्पल्स क्या हैं? ऑल द पॉलीगॉन्स एंड मैनी नेचुरल फॉर्म्स. नाउ अगर हम बेसिकली उसको स्टडी करने की कोशिश करें, हर एक लाइन का, हर एक शेप का, उसकी क्वालिटी का इफ़ेक्ट होता है, डेफिनेटली एक इफ़ेक्ट होता है. जैसे ट्रायंगुलर फॉर्म है वो एक डेवलपमेंट शो करने के लिए यूज़ किया जाता है. लाइक किसी तरह के एक हम बिल्कुल
हाइट पर पहुंच जाए किसी चीज़ के, हम ट्रायंगुलर वे से शो कर सकते हैं. ओवल शेप हैज़ ग्रेस एंड चार्म. इट इज़ सेड दैट ओवल शेप, ह्यूमन फेसेस विद ओवल शेप्स आर रियली गुड. तो इससे हम क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो ओवल शेप है वो चार्म एंड ब्यूटी को डिपिक्ट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं या करते हैं. सर्कुलर शेप हैज़ अ सेंस ऑफ फुलनेस, मोशन, इक्वालिटी एंड कंप्लीटनेस. जो सर्कल होता है अपने आप में कंप्लीट फॉर्म को रिफ्लेक्ट करता है. ये जैसे अगर हम बात करें नेचर में, तो फुल मून जो होता है, फुल जब वो कंप्लीट सर्कल में आता है तो वो एक कंप्लीटनेस का हमें आभास देता है. सो दीज वर सम शेप्स एंड देयर इफेक्ट. वी विल मूव टूवर्ड्स नाउ स्पेस. Now what is space? Forms to be seen clearly need space around them to create a sense of edge that defines their shape. Space is a working area within which we compose a picture. If no space was left between the two printed lines of the page, we could feel strain on our eyes. Space is essential. The space around the page gives emphasis to the text. Technically, it is called positive or negative space. Positive space refers to the space of a shape representing the subject matter. Negative space refers to the space around and between the subject matter. अब किसी भी चीज़ को साफ और ठीक तरह से देखने के लिए या समझने के लिए हमें स्पेस चाहिए जो उनके आसपास होनी ज़रूरी है, ताकि हमें उस वर्किंग एरिया का क्लैरिटी हो सके. अब स्पेस इज़ व्हाट एक्चुअली? इट इज़ अ वर्किंग एरिया विद इन विच वी कंपोज अ पिक्चर और वी राइट समथिंग. मतलब ये एक हमारा काम करने वाला एरिया होता है जिसमें या तो हम लिखते हैं या हम पिक्चर या कुछ और बना सकते हैं. इसके आसपास, इस एरिया के आसपास जिसमें हम पिक्चर कंपोज करेंगे या अपना कोई राइटअप कंपोज करेंगे, उसके आसपास भी जगह का होना खाली ज़रूरी है. क्यों? क्योंकि अगर वो जगह खाली नहीं होगी तो हम अपनी आइज़ के ऊपर स्ट्रेन फील करेंगे. सपोज हमारी बुक्स के ऊपर कोई मार्जिन ना हो, कोई और पिक्चर ना हो, कोई फुल स्टॉप ना हो, कोई कोमा ना हो, और राइट फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ द पेज एक टेक्स्ट स्टार्ट हो और एंड तक ख़त्म हो जाए, हमारा ध्यान शायद उस जगह पर नहीं टिक सकेगा. तो क्रिएट एन इम्प्रेशन टू गिव एम्फसिस टू द टेक्स्ट और टू द पिक्चर. इट इज़ एसेंशियल टू मैनेज द स्पेस एरिया. अब स्पेस कितनी तरह का होता है? इट इज़ टू टाइप्स ऑफ. वन इज़ पॉजिटिव स्पेस, सेकेंड वन इज़ नेगेटिव स्पेस. जो पॉजिटिव स्पेस है वो उस एरिया को रिफ्लेक्ट करता है जिसमें हम काम करते हैं. हमारा वर्किंग एरिया जो है वो पॉजिटिव स्पेस कहलवाता है, और जो हम साइड पे मार्जिन छोड़ते हैं वो नेगेटिव स्पेस कहलवाता है. अगर आप इस स्लाइड को ही देखें तो इसके साइड पर एक बॉर्डर है, ऊपर एक स्पेस वर्ड लिखा हुआ है, उसके ऊपर भी काफ़ी जगह है और उसके नीचे भी जगह है, और उसके एक तरफ हमने DAV का लोगो लगा के रखा है. तो ये क्या है? ये एक स्पेस है जिसको हम नेगेटिव स्पेस कह सकते हैं बाहर के एरिया को एम्फेसाइज करने के लिए, ताकि हमारा अंदर का जो टेक्स्ट है उसको इक्वल इम्पोर्टेंस, इसको इम्पोर्टेंस मिल सके. नाउ नेगेटिव स्पेस रेफर्स टू द स्पेस अराउंड एंड बिटवीन द सब्जेक्ट मैटर. हमारा सब्जेक्ट मैटर क्या है? हमारा सब्जेक्ट मैटर जो मैंने यहाँ पे टाइप किया या लिखा हुआ है, दैट इज मेरा सब्जेक्ट मैटर. जो साइड वाला स्पेस है, जो खाली जगह आपको दिखाई दे रही है या बॉर्डर का डिजाइनिंग आपको दिखाई दे रहा है, वो है नेगेटिव स्पेस. अब आप इमेजिन कीजिए, इमेजिन अ रूम वेयर देयर इज नो स्पेस लेफ्ट फॉर अस टू वॉक. इन अ रूम वी वुड फील एज इफ वी आर इम्प्रिजन्ड. द यूटिलिटी ऑफ द रूम डिपेंड्स अपॉन द एम्प्टी स्पेस. अगर आप ये देखिए कि एक रूम में आप हैं जिसमें आपके लिए जगह भी नहीं छोड़ी गई है कहीं भी चलने के लिए, तो आप ये फील करोगे कि आप ट्रैप्ड हो, इम्प्रिजन्ड हो, जगह होनी चाहिए. इसका मतलब ये थोड़ी है कि रूम शुरू हुआ तो उसमें सिर्फ एक बेड रखने की जगह है, उसमें मूवमेंट की जगह ही ना बचे, तो आप क्या फील करोगे? रेस्ट्रेंट. अच्छा, अगर आप इस सिचुएशन को जो अभी हम करंट फेस कर रहे हैं, it is COVID-19, due to coronavirus we are subjected to stay at home, right? अगर हम बाहर नहीं निकल पा रहे, क्या we all are feeling comfortable with this? Are we not feeling imprisoned? Yes, we are feeling imprisoned. That's why
वी फील लाइक गोइंग आउट, हम चाहे 10 मिनट 15 मिनट अपने घर की बालकनी में या अपने बाहर पोर्च एरिया में घूमें, वी फील गुड because we also feeling it is kind of imprisonment, right? इसका मतलब क्या है, लाइफ में हमें हर जगह पर कहीं ना कहीं अपने आप को स्पेस देने की ज़रूरत रहती है. अगर मैं आपको बोलूँ सारा दिन पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, इज इट ईजी फॉर यू? नो, इट इज़ नॉट ईजी. देयर शुड बी अ प्रॉपर स्पेस, पॉजिटिव नेगेटिव. जैसे पॉजिटिव कि आपको ये पता हो कि आपने 2 घंटे 3 घंटे अपनी स्टडीज़ को देनी है, 1 आवर आपने फिजिकल एक्टिविटी करनी है, चाहे आप एक्सरसाइज करें चाहे आप कुछ करें, तो दैट इज कॉल्ड नेगेटिव स्पेस. सो दैट योर लाइफ शुड अटेन अ बैलेंस. Now I hope that you will understood it better, what is space and what is negative and what is positive space. Now we have studied so far space, so we should add one more kind of space. One kind of space which we must know lies between the work of art and beholder. Such a space is called an aesthetic distance. When we look at Taj Mahal, we see an example of aesthetic distance. Its visual appeal would be lost if no space was left in the front of the building. Blessed by generous openness of surroundings, the building of Taj Mahal stands majestically on its platform. अब हमने 2 तरह की स्पेस तो पढ़ी है, वन इज़ पॉजिटिव एंड वन इज़ नेगेटिव. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द एस्थेटिक डिस्टेंस. दैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ स्पेस विच लाइज बिटवीन अ ऑब्जर्वर और अ वर्क ऑफ आर्ट. जैसे कि मैंने एक बहुत खूबसूरत ऑयल पेंटिंग बनाई डैब्स एंड पैचेस लगा के, और मैंने उसको किसी एक प्रॉपर स्पेस पर टांगा, और ताकि जो आने जाने वाला है उसकी तरफ देखे और उसको समझ सके. अब अगर मैं उसको किसी इनअप्रोप्रिएट जगह पे लगा दूंगी जिसपे उसकी नज़र, किसी की नज़र भी ना जाए, या फिर उसका जो फोकस है वो ठीक तरह से ना हो, उस पर लाइट ना पड़ती हो, या अंधेरे में रख दी कहीं, तो वो उसकी ब्यूटी कहाँ है, वो ब्यूटी ख़त्म हो जाती है. सिमिलरली अगर आपने ताजमहल देखा, अगर नहीं भी देखा तो अपने फोटोग्राफ्स देखी होंगी कि ताजमहल के आगे एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मीन्स अ स्टेज काइंड ऑफ, बहुत बड़ी स्पेशियल प्लेस है, जगह है बहुत ज़्यादा. और उसके भी आगे अगर आप देखें तो वहाँ पर एक बहुत लश पश ग्रीन लॉन्स हैं विद साइप्रस ट्रीज. तो वो क्या है, वो सारे क्या करते हैं, वो बिल्डिंग की ब्यूटी में एडिशन करते हैं, और बिल्डिंग की ब्यूटी में एक आर्टिस्टिक वे से एक एस्थेटिक डिस्टेंस क्रिएट करते हैं जो लोग उसको देखने आते हैं और बिल्डिंग में. और जब वो अंदर जाते हैं दे फील मेस्मराइज्ड टू सी द ब्यूटी ऑफ ताज. और ये जो डिस्टेंस है बिटवीन द beholder and the artistic place, that is called aesthetic distance. Now there are more important elements in spatial arrangements are perspective, vanishing point and foreshortening. Now what is perspective? Perspective, it represents a volume of space or illusion of distance on a flat surface in a way that it looks realistic and accurate. We see it in nature. Perspective drawing is a technique used to represent three-dimensional images on a two-dimensional picture plane. Now there is a difference between the three of these elements. One is vanishing point, first one is perspective, second is vanishing point and third is foreshortening. Perspective हमने पहले भी पढ़ा है. इसको आराम से मैं सिंपल भाषा में समझाऊं तो ये एक तरह से स्टडी ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स है जिसको हम क्या करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि जो एक 2 डिमेंशनल चीज़ है वो 3 डिमेंशनल का आभास देती है. दैट मीन्स हम इसमें ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को. देखिए जितनी चीज़ आपसे दूर होगी वो आपको उतनी छोटी दिखाई देगी. अगर मैं सपोज बुर्ज खलीफा है, मैं उसको बहुत दूर से देख रही हूँ तो वो छोटा ही बिल्डिंग दिखाई देगा. ये तो मुझे पास जाने पे पता चलता है कि बुर्ज खलीफा कैसा है, राइट? तो वो जो डिस्टेंस है हम अपनी पेंटिंग्स में, पिक्चर्स में दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको हम जो दूर वाली चीज़ें हैं उनको छोटा बनाते हैं और थोड़ा मिस्टी में बनाते हैं, और जो हमारी पास की चीज़ें हम उसे क्लियर और ब्राइट बनाते हैं और बड़ा बनाते हैं, जिससे क्या होता है एक
टू डिमेंशनल चीज़ पर हम एक 3 डिमेंशनल का इफ़ेक्ट देते हैं. तो basically it is perspective is a technique or a tool in drawing to present 3-dimensional images on a 2-dimensional picture on on the paper plane. Now you can study the perspective in these drawings. You can see, and foreshortening also. This guitar, you can see a full-fledged guitar is lying, but it depends upon the onlooker वो किस एंगल से उसको देख रहा है. तो ये एक छोटी सी पिक्चर में एक बड़ा सा गिटार को फोरशॉर्टन करके उसकी इमेज का थोड़ा शॉर्ट करके रिप्रेजेंट किया गया है. बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो छोटा है, ये इल्यूजन क्रिएट कर रहा है कि दूर से दिखने पे गिटार का क्या शेप दिखाई देगा. अगर आप बिल्डिंग्स वाला इमेज देख रहे हैं तो आप एंड पर जाके देखिए, दैट थिंग्स आर diminishing, that is known as vanishing point. एंड बिल्डिंग्स को अगर आप देखें तो ऐसे लग रहा है कि जाके एक तिकोने पे मिल रही हैं, जबकि ऐसा नहीं है. इट इज़ इन रियलिटी द लाइन्स आर गोइंग पैरेलल एंड मीटिंग एट द एंड. इट जस्ट सीम्स, बट दीज आर नॉट मीटिंग एट द एंड. एंड बिल्डिंग जो अभी आपको दूर जाते हुए छोटी दिखाई दे रही है, दैट इज़ एक्चुअली फॉर्म ऑफ पर्सपेक्टिव. अगर आप ये कप्स वगैरह देखें तो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कप किस शेप में दिखाई देगा. दैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव एंड फोरशॉर्टनिंग सेम हैंड पे. अगर आप देखें तो एक खड़ा हुआ कप आपको कैसा दिखाई देगा, एक लेटा हुआ, और एक थर्ड फोर्थ एंगल से देखने पर. अगर पर्सपेक्टिव ऊपर से आप देख रहे हैं, उसको एरियल व्यू दे रहे हैं, तो आपको वो कप कैसे दिखाई देंगे. आई होप दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड पर्सपेक्टिव थ्रू दीज ड्राइंग्स नाइसली. Now let's move to our further divided perspective. There are two main aspects in perspective drawing. Linear perspective, which deals with the organization of shapes in space. Aerial perspective, which deals with atmospheric effects on the tones and colors. देखिए, मैंने आपको इसकी एग्जाम्पल भी दी थी. जब हम एक लैंडस्केप बनाते हैं तो अगर हम दूर का इफेक्ट दिखाना चाह रहे हैं तो हम उसको क्या करते हैं, कलर्स को भी डल एंड मिस्टी कर देते हैं, ताकि आगे वाला जो है, जो पास वाली चीज़ें हैं, वो ब्राइट और शार्प बनाई जा सके, ताकि इम्प्रेशन दिया जा सके एक 2D इमेज को 3D का. Now the correct perspective study in drawing and coloring thereafter makes a creation convincing for a viewer. Now, vanishing point. It is that point in perspective where top lines and bottom lines meet at an eye level. ये मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर ऊपर और नीचे की लाइंस मिलती हैं कहीं पर, that is known as vanishing point. जैसे sky और sea हमें मिलता हुआ दिखाई देता है, जबकि वो आपस में कभी नहीं मिलते हैं, तो that is known as vanishing point. Now its degree varies from place to place and from object to object. ये जो vanishing point है वो हर जगह पर अपने अपने हिसाब से होगा. अगर हम बिल्डिंग्स की बात करेंगे तो देखिए मैंने आपको पिछली इमेज में दिखाया भी था कि बिल्डिंग्स कैसे आपस में मैच कर रही थी एंड पर जाके, जबकि वो कभी मिलती नहीं है. तो ये हमारे आई लेवल पर भी डिपेंड करेगा. इट इज़ आवर आई लेवल विच गिव्स द इफेक्ट ऑफ लेंथ एंड डेप्थ. द 3 एरोज इन द पिक्चर बिलो शो द 3 वैनिशिंग पॉइंट्स. मैंने आपको अलग अलग तरह के पीछे वाली इमेज अगर आप देखें तो मैंने दोनों तरफ आपको इमेजेस में दिखाया कि कैसे एक एरियल पर्सपेक्टिव कैसे दिखाई देगा और एक इनसाइड वुड वो कैसा दिखेगा. अगर आपने देखी होगी इमेजेस तो उसमें क्लियर है. अगर आपके पास बुक होगी तो बुक में भी इसके इमेजेस दी गई हैं, यू कैन सी दैट. Now foreshortening. It occurs when an object is compressed when seen from a particular viewpoint. Foreshortening is particularly effective artistic device used to give the impression of 3-dimensional volume and क्रिएट अ ड्रामा इन द पिक्चर. इसके लिए मैंने आपको गिटार की पिक्चर दिखाई थी जो कि है पूरा, बट वो एक कंप्रेस्ड फॉर्म में क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो एक उस एंगल पे पड़ा है जहाँ से वो हमें एक कंप्रेस्ड फॉर्म में दिखता है, बट वो इल्यूजन एक कंप्लीट गिटार का ही दे रहा है.
So that is known as foreshortening. Foreshortened means the size of an object, dimensions along the line slightly are relatively shorter than the dimensions across the line of the sight. The guitar above is lying toward the observer to so foreshortened to give a realistic look. आपको ना ये इमेज आपको पीछे आप स्लाइड करके दोबारा देख सकते हैं कि कैसे एक गिटार है जो फुल फ्लेज पड़ा है, बट हमने आपको उसको फोरशॉर्टन करके दिखाया है, बट इट डजंट मीन के वो छोटा है, ये एक्चुअली उसको रियलिस्टिक लुक देने के लिए, मतलब एक 2D इमेज को 3D इम्प्रेशन देने के लिए किया गया है. In the next lecture, we would continue with the next element, that will be color. Why I am not doing color today? Reason is this: the color in itself is a full-fledged question. If I will start today, I will be not able to complete it today. So I will be continuing with it in our next lecture. I hope that you understood everything that I have taught you today. Have a nice day. Thank you.